Good afternoon to everyone, students. Within a minute, we are starting. Welcome for the concluding session of elasticity. In this session, we will study bulk modulus of elasticity, modulus of rigidity, and some miscellaneous questions. Good afternoon to everyone. I am very hopeful कि इस बार हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है. तो you all people will do good in your upcoming test. Okay, I will explain. So let's start with the bulk modulus of elasticity. It is denoted by K or E. In some books, it is denoted by K. In some books, it is denoted by E. तो इसमें कुछ हमें थोड़ा सा समझना होगा. Whenever there is a change of volume, then we study the bulk modulus. देखिए इसको लिखेंगे when a solid or fluid means liquid or gas, is subjected to change in pressure. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेशर में change in pressure, its volume changes but the shape remains unchanged. Bulk modulus of elasticity is the ratio of normal stress to volumetric strain. So K, or you may write E, minus delta P upon delta V by V. Delta P is the change in pressure. That is called normal stress, defined as normal stress. इसको आप नोट कर लीजिए.
Negative sign shows that whenever the pressure is increased, there is a decrease in volume. There is a decrease in volume. तो आप इसे E से भी बता सकते हैं और K से भी बता सकते हैं. In some books, it is also denoted by B. B stands for bulk modulus. Negative signs shows that when the pressure is increased, the volume decreases. So this is the first point, and please note it down. So we are clearing this. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility. So compressibility is one upon B one upon bulk modulus. एक मिनट. अब देखिए बल्क मॉडुलस था माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी. So compressibility can be written as one upon minus v delta p by delta v. So it will be minus delta v upon v delta p. तो आप इसको याद रखिए. So every state of matter possesses volume elasticity. Whenever the pressure acting on a matter changes, the change in volume takes place. The change in volume takes place. And a volumetric strain is developed. तो इसको आप नोट कर लें. I think you are done with it. अब देखिए, we need to solve some numericals on bulk modulus. Before starting with the numericals, तो हमें कुछ मॉडुलस bulk modulus of gases को पढ़ना पड़ेगा.
तो देखिए आइसोथर्मल elasticity. What is isothermal elasticity? It is the bulk modulus of gas under isothermal conditions. Isothermal condition. अब देखिए इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. अब देखिए consider a cylinder in which a gas is filled. The pressure of gas is P, volume of gas is V. Now what happens? Now we compress the gas. By compressing the gas, the change in volume takes place. And the new pressure is P plus delta P. So, for isothermal process, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, we have the equation PV equal to constant P1 V1 equal to P2 V2. तो इसको आप नोट कर लीजिए. और थोड़ा ये डेल्टा V होना चाहिए. And when pressure is applied on the gas, what happens? The volume changes from V to V minus delta V, and pressure changes from P to P plus delta V. So we will use the formula for isothermal process PV equal to constant P1 V1 equal to P2 V2. इसको नोट कर लीजिए. ये थोड़ा सा इसका बैकअप लेके आपको बताना जरूरी है. ओके, आपने अब इसे नोट कर लिया है. इसे क्लियर कर रहे हैं. तो सपोज कर लिया कि गैस का किसी भी गैस का इनिशियल प्रेशर P था, वॉल्यूम V था. हमने गैस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया. So that pressure, new pressure becomes P plus delta P, and due to change in pressure, volume of gas decreases. Volume of gas decreases. Suppose the new volume of gas is V minus delta V. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. तो अब देखिए P1 V1 equal to P2 V2, PV equal to P plus delta P into, थोड़ा सा डेरिवेशन जरूरी है. Will multiply PV minus P delta V, open the bracket, plus V delta P minus delta P delta V. It is very small, so neglecting it. So we get it PV equal to PV minus P delta V plus V delta V. Now this will get cancelled. It will transfer here. So P delta V equal to V delta P. So P equal to V delta P upon delta V. So that can be written as delta P upon delta V
upon V. That is bulk modulus. That is called isothermal bulk modulus. So isothermal bulk modulus is equal, it is denoted by E theta. So E theta equal to P. तो आप लिख सकते हैं कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इज इक्वल टू इट्स प्रेशर. तो हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं. इज इक्वल टू प्रेशर. अब आप इसको नोट कर सकते हैं और मुझे बता दीजिए आपने इसे नोट कर लिया है. तो किसी भी गैस का आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस is always equal to its pressure. It is denoted by E theta. You'll find in books. तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. ये बल्क मॉडुलस हो गया. चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो स्टूडेंट अब इसको क्लियर कर रहे हैं. Adiabatic elasticity of gas. It is denoted by E5. It is the bulk modulus of gas under adiabatic conditions. इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, काफी लंबा एक्सपोनेंशियल डेरिवेशन है. तो adiabatic elasticity, we should write adiabatic bulk modulus gamma times of pressure. Gamma, ratio of specific heat. Gamma is given by Cp by Cv. And gamma is also written as 1 plus 2 by F, where F is the degrees of freedom. Degrees of freedom of gas. और मोनोएटमिक गैस के लिए आप लिख लीजिए, फॉर मोनोएटमिक गैस F is 3. For monoatomic gas F is 3. For diatomic gas F is 5. That is for monoatomic. Gas and 5 for diatomic gas, and F is 6 for triatomic gas.
तो ये आप इसको याद रखिए, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट. So adiabatic elasticity is gamma times of pressure. Okay. थ्री फाइव सिक्स और आगे आप नोट कर लीजिए. Adiabatic elasticity divided by isothermal elasticity is E phi upon E theta is gamma is Cp by Cv is 1 plus 2 by F. 1 plus 2 by F. Now we will do some questions on bulk modulus. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1. If the volume of a block of aluminium is decreased by, न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे, एग्जाम में वही आएंगे, is decreased by 1%, then the pressure on its surface is increased by how much? Amount. Bulk modulus of aluminium अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. हमें गिवन है डेल्टा V बाय V into 100 is 1%. So delta V by V will be 1 by 100, that is 10 to the power minus 2. And we know that bulk modulus is change in pressure upon volumetric strain. So change in pressure will be B into delta V by V. तो B है आपका 7.5 into 10 to the power 10. Delta V by V is 10 to the power minus 2. So the question is very simple. 7.5 into 10 to the power 8
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So this is a very simple question. We have done it. Next, question number 2. If a rubber ball, ये important question है, is taken at the depth of 200 meter in a pool, its volume तो वॉल्यूम क्यों कम हुआ रबर बॉल का? क्योंकि जैसे ही हम इसे पूल के डेप्थ पे बॉटम पे ले जाएंगे तो प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉल will increase. Its volume decreases by 0.1%. If the density important question है, water is 1 into 10 to the power 3 kg per meter cube and G is 10 meter per second square, then the volume elasticity of material or ball is 10 to the power 8, 2 into 10 to the power 8, 10 to the power 9, 2 into 10 to the power 9. अब देखिए जब हम बॉल को बॉटम ऑफ पूल पे ले जाएंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज. आई विल एक्सप्लेन यू दिस. अच्छी बात है, किसी ने ऑप्शन बताया तो बहुत अच्छा लगा. अब देखिए ये बॉल है और यही बॉल बॉटम पे जा रही है. यहां पर प्रेशर क्या है? इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब बॉटम पर प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर तो था ही, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम. समझने की जरूरत है कि इसको कैसे करा जाता है. प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम
और वाटर कॉलम का प्रेशर क्या होगा, एच डी जी, डेप्थ एच है। तो आप पहले से नोट करिए, अगले स्लाइड में जाके ये सॉल्व होगा। चेंज ऑफ प्रेशर हो गया। व्हेन इट वाज इन एयर एट द टॉप, तो उस पर प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, और जब बॉटम में जाएगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर, P2 माइनस P1। अगर हम P2 से P1 को माइनस कर देंगे तो 1 एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम। यस, दिस आई वांट टू टेल यू। तो इफ यू हैव नोटेड डाउन, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, अच्छा लगा, पर अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग इज लेस। तो इसको क्लियर कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर है इसका। वाटर कॉलम का प्रेशर निकालना पड़ेगा हमें। डेप्थ दी है 200, डेंसिटी दी है 10⁻³ g। ओके, तो इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट, हैव यू नोटेड डाउन। अब चेंज इन प्रेशर हो गया एच डी जी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई 0.1, that is 10⁻⁻⁻1. So delta V by V will be 10⁻⁻3. तो बल्क मॉडुलस एच डी जी 200, 10⁻3, 10, 10⁻⁻3. So 2 into 3 plus 1, 4, 2, 6, 10⁻⁹ Newton per meter square. So the correct answer is D. So this is a very good question as well as important on this. अब इसको क्लियर कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, important. A uniform cube is subjected to volume compression if each side is decreased by 1%, then bulk strain is
अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं. L cube, where L is the side of cube. पावर देखिए 1 into percentage change in V equal to 3 into percentage change in L. अब परसेंटेज चेंज इन V होगा डेल्टा V बाय V इंटू 100 और ये दिया हुआ है आपको परसेंटेज चेंज इन L is 1 so it is 3 so delta V by V is 3 by 100 so it is 0.03 so correct answer is B. तो आंसर इज डी. अब इसको क्लियर कर रहे हैं. अब देखिए अगली हेडिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बीटा. अब देखिए कंसीडर है क्यूबॉइड. ये फिक्स सरफेस है. If we apply a tangential force on the upper surface, what will happen? The upper surface will get shifted. So let me do it by, wait a minute. Okay. So what I was talking, when the tangential force is applied on the upper surface, so the displacement of upper surface will take place. Displacement of upper surface. Delta L. तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. Similarly, here also.
and phi is called angle of shear. Angle of shear. तो ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. You just take a very thick book in your hand and fix the lower surface and upper surface पे आप एक tangential force apply करिए. So what you will find, the upper surface will be shifted, will be displaced. So modulus of rigidity is calculated as इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा. Tangential stress angle of shear. Tangential stress is F upon A, that is phi. और फिर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं. Phi can be written as tan phi perpendicular upon base delta L upon L. तो फिर हमने फॉर्मूला वही रखा F upon A delta L upon L. So eta can be written as FL upon A delta L. इसको आप नोट कर लीजिए. Have you noted down? अब इसको लिखना कैसे है ये देखिए. इसको क्लियर कर रहे हैं. Are you done with this? अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा. आपने लिखा eta equal to FL upon A delta L. Okay, can you tell me what is F? Any one of you? Can you tell me what is F? Come on, come on. What is F? Nobody wants to answer. No, it is tangential force. Tangential force. ऐसे लिखिए. Applied on upper face. ऐसे लिखो. Okay. A. लेकिन आंसर दिया. I am very happy that you want to. आप आंसर देना चाहते हैं. अच्छी बात है. What is A? Come on, come on, come on, come on, come on. What is A? आंसर देना चाहिए. गलत सही नहीं सोचना चाहिए. आंसर देने का हैबिट होना चाहिए. ओके, टेंजेंशियल एरिया. अच्छा जवाब दिया आपने. अब नहीं, आप इसे ऐसे बोलिए एरिया ऑफ अपर सरफेस. ठीक है. अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तभी बनेगा जब हमें पूरा ये क्लियर हो. तो इसको ऐसे लिखो. गुड आंसर. एरिया ऑफ अपर सरफेस जिस पे हमने फोर्स लगाया है. डेल्टा एल तो क्लियर है.
डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अब आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा अगर आप ऐसे इसको पढ़ेंगे तो ईटा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ही है। अब आप समझ गए हैं ना, क्वेश्चन इस पे बन सकता है। अब बचता है सिर्फ एल, ये और बता दीजिए। व्हाट इज एल? नोबडी वांट्स टू आंसर। चुप रहने से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, डायग्राम को देखिए ध्यान से। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस? सी द डायग्राम। जो अभी आपने डायग्राम बनाया ना, उसको आप देखो, क्या डिस्टेंस है लोअर सरफेस और अपर सरफेस के बीच में? कम ऑन, आंसर इट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस? डायग्राम देख के बोल सकते हैं। ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन अपर सरफेस, हाँ यस, डिस्टेंस बिटवीन, इसको ऐसे पढ़ना है, अपर सरफेस, अब न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, एंड लोअर सरफेस। इस बार उम्मीद है कि बहुत बच्चे अच्छा करेंगे। पता नहीं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल। इस बार फिजिक्स में कुछ चेंज मुझे लग रहा है कि होगा, उम्मीद है मुझे। तो ऐसे पढ़ना चाहिए। अब देखिए, ऐसे क्यों करना चाहिए, ये आपको क्लियर कर देते हैं। अब इसको क्लियर करने जा रहे हैं। तो अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कम से कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब जैसे देखिए, सॉरी। अब जैसे देखिए, आई एम सॉरी, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ आपने फोर्स अप्लाई किया। तो एरिया ऑफ अपर सरफेस क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए कैसे न्यूमेरिकल्स करे जाते हैं। 80 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए, ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन लोअर, ये तो फिक्स्ड है। तो एल कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 1/10/100 मीटर। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये अप्रोच आपको मालूम हो, व्हाट इज एल। है ना, तो ये न्यूमेरिकल्स मालूम होने चाहिए। अभी डन, आपने से नोट कर लिया।
देखिए एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, थर्मल स्ट्रेस। ये दो रिजिड सपोर्ट्स हैं, between these two rigid supports a rod is fixed. तो लिखेंगे if a rod is fixed between two rigid supports, due to change in temperature. अब देखिए एक्सपांशन, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं. If in summers the temperature will increase and due to increase in temperature the length of rod will increase, but आप देखिए rod is fixed between two rigid supports. तो टेम्परेचर चेंज के कारण रॉड का लेंथ तो इंक्रीज होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रॉड का लेंथ इंक्रीज होगा, रॉड का लेंथ इंक्रीज होगा तो रॉड के जो एंड्स है वो रिजिड सपोर्ट को प्रेस करेंगे. तो यही हम लिखने जा रहे हैं, फिर रॉड इज फिक्स बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर. Due to change in temperature its length will change. Its length will change and so it will exert a normal stress. एक फोर्स लगाएगा on the supports, on the rigid supports. हम मान के चलते हैं अभी लेंथ इंक्रीज हो गई, ये ऐसे फोर्स अप्लाई होगा. This stress is called thermal stress. This stress is called thermal stress. इसे आप नोट करिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
अब यहाँ पे हमें पढ़ना है थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन भी पढ़ना है. So, are you done with this? अब देखिए थर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. व्हाट इज अल्फा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. यहाँ हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. तो y यहाँ पे होगा थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन. तो थर्मल स्ट्रेस कैन बी रिटन एज, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, क्वेश्चन तो दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. तो आप चाहें तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, थर्मल फोर्स वाई ए अल्फा डेल्टा टी. तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान रखिए और इसको भी ध्यान रखिए. ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है. और इम्पोर्टेंट दोनों है. इस पे हमें क्वेश्चन आपको मिल सकता है. इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम. आप इसे नोट कर लीजिए. तो इसको क्लियर कर रहे हैं. अब देखिए एक क्वेश्चन को आप देखिएगा. रॉड इज फिक्स्ड, ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए. फिक्स बिटवीन टू पॉइंट्स at 20 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion (1.1 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius) and Young's modulus equal to 1.2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Find the stress developed in the rod if
temperature of rod becomes 10 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत क्लियर है, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁵, y इज 1.2 इंटू 10⁻11। तो थर्मल स्ट्रेस तो आप निकाल ही सकते हैं। y अल्फा डेल्टा t मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। You must know the formula. ओके, तो लिख लिया आप लोगों ने इसे। तो आप इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा थर्मल स्ट्रेस। अब देखिए पॉइजन्स रेशियो, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। डिनोटेड बाय सिग्मा। इट इज द रेशियो of lateral strain to longitudinal strain. Lateral strain is developed in a direction perpendicular to longitudinal strain. अब आप देखिए एक कॉर्ड है, जैसे एक बार है। हम एक बार की बात करते हैं, ये बार है। सपोज इट इज क्लैम्प्ड हियर। अगर हम इसको लोअर एंड पर फोर्स अप्लाई करें तो लेंथ विल इंक्रीज। बट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, कुछ सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज। Radius of cross section will decrease, length will increase, there is no doubt about it कि length will increase। तो lateral strain कैसे निकालते हैं? lateral strain अगली स्लाइड में चलते हैं और lateral strain बताते हैं आपको। मेन आपका जो सिलेबस है that is Young's modulus of elasticity, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो lateral strain कैसे निकालते हैं? तो देखिए इसको अगली स्लाइड में करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगी
delta L by L. It always takes place in the direction of force. जो भी फोर्स की डायरेक्शन में चेंज होता है, जो भी चेंज फोर्स की डायरेक्शन में होता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल. और जो भी चेंज फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जो भी चेंज फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, उसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन. यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? डेल्टा आर अपॉन आर. ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है. हाँ, डिक्रीज इन डायमीटर, डिक्रीज इन रेडियस. तो सिग्मा क्या है? लेटरल स्ट्रेन. हमेशा याद रखो. अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए. लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. अब आप देखिए, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा. अब यहां हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और मान लीजिए ये यहाँ पर फिक्स है. ओके, फिक्स्ड. हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? ए विल इंक्रीज. जो डायमेंशन है फोर्स की डायरेक्शन में, वो इंक्रीज होगी. और दो डायमेंशन और हैं, बी विल डिक्रीज. आप सोचिए. एंड सी विल डिक्रीज. तो डेल्टा ए बाय ए is longitudinal and delta b by b and delta c by c are lateral. Any change which takes place, the change in dimension which takes place in a direction of force, that is called longitudinal one. And the change in dimension which takes place, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, the change in dimension which takes place in a direction perpendicular to in a direction perpendicular to applied force is called lateral. तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये फिक्स है ना, फिक्स है. अब तो डेल्टा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगी यहाँ पर? इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में सोचते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगी? डेल्टा ए बाय ए. और लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? दो होंगी. एक होगी डेल्टा बी बाय बी और एक होगी डेल्टा सी बाय सी. ये हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ लेंथ इंक्रीज हो रही है और फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. तो ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि क्या लेटरल है और क्या लॉन्गिट्यूडिनल है. तो कम से कम आप मेरे को चैट करके बता सकते हैं कि सर ये हमको समझ में आ गया कि नहीं आया. एटलीस्ट यू कैन टेल. तो इसको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ना है. एक ऐसा चेंज जो फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, हम उसे बोलेंगे लेटरल चेंज. ऐसा चेंज जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, हम उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल चेंज. अब एक क्वेश्चन पूछा था, तो आई वांट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द प्रीवियस आईआईटी पेपर. पर मैं चाहता हूं कि मैं इसको सॉल्व कर दूं. ये थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए. लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना चाहता हूँ. रिलेशनशिप, वेट अ मिनट.
ये आप लिख लीजिए सारे रिलेशनशिप. Although it is not in syllabus, but we should cover it. We cannot take any chance. 9k eta, not k. We will write it b, bulk modulus. आप k भी यूज कर सकते हैं. 3b plus eta, and the last one 3b minus 2 eta upon 6b plus 2 eta. Now b or k or some books e, they all shows nothing but bulk modulus of elasticity. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. So have you noted? Are you done with this? Okay. तो देखिए अब कुछ एक बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ. Theoretical limits of Poisson ratio. अब वो कैसे निकालते हैं, ये इसका भी एक टेक्निक है, वो मैं आपको बता देता हूँ. आप जानते हैं कि y की वैल्यू है 3b into 1 minus 2 sigma. अब definitely y is a quantity. Young's modulus of elasticity is greater than 0. So 1 minus 2 sigma is also greater than 0. 1 is greater than 2 sigma. So 1 by 2 is greater than sigma. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका हो गया, y को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 eta into 1 plus sigma. So y is greater than 0. So 1 plus sigma is greater than 0. Sigma is greater than minus 1 and less than 1 by 2. तो theoretical limits हो गई. Sigma is less than 1 by 2 and greater than minus 1. ऐसे निकालते हैं. आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए एक और चीज होती है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. प्रैक्टिकल लिमिट्स नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज, ये देखिए जो निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए. तो प्रैक्टिकल लिमिट्स ऑफ पॉइजन रेशियो शुड बी 0 and 1 by 2. ये याद रखिए. सो आर यू डन विद दिस? तो आपने इसे नोट कर लिया. तो इस तरह से हम थ्योरेटिकल लिमिट्स और प्रैक्टिकल लिमिट्स निकालते हैं. एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक एक्सपेक्टेड है. इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कॉमन होते हैं, तो वो हमें जरूर करना चाहिए. अब लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसको क्लियर कर रहे हैं. तो आप समझ गए, प्रैक्टिकल लिमिट्स में हमने निगेटिव को रिमूव कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल लिमिट्स में हम मानते हैं कि पॉइजन रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव. तो थ्योरेटिकल लिमिट्स और प्रैक्टिकल लिमिट्स में ये डिफरेंस है. अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
इसको आप अच्छे से नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वायर ऑफ लेंथ, देखिए वायर की लेंथ L है, एंड ऑफ वेट W is attached rigidly to a point in the roof and weight W1 is suspended from its lower end. If S is the area of cross section, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, area of cross section of the wire, the stress, पूछा क्या गया है, the stress in the wire at a height 3L/4 from its lower end. There are four answers, W1/S, second one W1 plus W/4 upon S. The third answer is W1 plus 3W/4. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है, W1 plus W डिवाइडेड बाय S। अब आप देखिए, कंसेप्ट देखिए, इसको आप नोट करिए पहले, तो वी विल बी एबल टू सॉल्व इट इन नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ही सॉल्व कर पाएंगे। We will be needing some space to get the solution. So if you are done with it, tell me. It's a very good question, and let me tell you, it is very simple. Okay, I think you are done. Okay, तो फिर आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए, बड़ा मजेदार सॉल्यूशन है, ये देखिए, ये रॉड है। एक मिनट, थोड़ा इसको बेटर वे में करेंगे तो ठीक रहेगा। और ये देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3L/4, तो नीचे तो एक आप जानते हैं कि वेट तो लग ही रहा है,
ये वेट W1, और यहाँ पर क्या होगा, इस पोर्शन का वेट, देखिए इसका वेट कितना होगा आप बताइए। इस पूरे पोर्शन का वेट होगा W/4। तो इस पॉइंट पर टोटल वेट एक्टिंग, weight of length L/4 प्लस W1। तो इसका वेट कितना होगा, W/4 प्लस W1। तो स्ट्रेस विल बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, W/4 प्लस W1 डिवाइडेड बाय S। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बात तो इसलिए मैंने इसे बिल्कुल सिलेक्ट किया, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और बड़ा अच्छा है। तो हैव यू डन दिस? तो मेन तो आपका ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो मेन प्रैक्टिस आप रखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। Thermal stress may come, but Young's modulus is very important. All the questions based on Young's modulus are very important. तो इसको आप क्लियर कर रहे हैं, आपने इसे नोट कर लिया होगा। So we end it. We'll have to start with another topics.